میرا نام مہوش کاظمی ہے اور ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں کیونکہ سری نگر سے ہمارے لیے اسپیشلی سکینہ ایتو میم جی آ رہے ہیں جو کہ ہمارے یہاں کی ایجوکیشن منسٹر ہیں. اصل میں ہم یہاں بیکورڈ ایریا میں رہنے والی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر جس طرح پونچھ میں ڈگری کالج پونچھ ہو گیا, سرن کوٹ کا کالج, یہاں پر کالج اویلیبل نہیں تھا. تو ہمارا یہاں پہ جو ہے یہ کالج کا اسٹارٹ اپ کرنے جا رہے ہیں, یہاں پہ انوویشن یہاں ہو رہا ہے کالج کا, تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. دیکھیں آپ, کیونکہ یہاں کے بچوں کو بالکل بھی موقع نہیں مل پاتا ہے کہ وہ فردر جا کر اپنی ایجوکیشن حاصل کریں, تو انہیں باہر کی سٹیز میں جانا پڑتا ہے. وہاں پر رہنے کا خرچہ, کھانے کا خرچہ, کالج کی فیس اور باقی کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر کافی سارے اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں آئے ہوئے ہیں اور پروفیسرز وغیرہ سب آئے, اور ہم میم کا ویٹ کریں تو میم آئیں گے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ پروگرام آج کا اسٹارٹ ہوگا. تو ایک اسٹارٹ اپ ہی ہے یہ, تاکہ یہاں پر کالج کو بنائیں گے اور تاکہ یہاں کے بچوں کو ایجوکیشن جو ہے اچھے سے مل پائے. یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. ایسے بہت سے بچے ہیں جنہیں موقع نہیں ملتا, ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے پر ان کے پاس اسٹیج نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو وہاں شو کر سکیں. تو ایک بہت بڑی بات ہے یہ, یہاں ایک بیکورڈ ایریا کے اندر ایک کالج بننے جا رہا ہے. ان بچوں کو اتنا موقع ملے گا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو رکھیں, وہ پڑھیں گے اور پھر آگے جا کر اپنے سپنوں کو پورا کریں گے, جو وہ بننا چاہتے ہیں اپنا کیریئر سنواریں گے اور وہ اپنے ماں باپ کی اپنی خواہشیں پوری کریں گے. وہاں کے کالجز میں جاتے ہیں انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اسی طرح یہاں کے بچوں کو بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ساری فیسلٹیز انہیں یہاں ملیں گی, پروفیسرز اویلیبل, کورسز اویلیبل ہوں گے, یہاں پر اسٹڈی میٹیریل ہوگا, لائبریری ہوگی. انہیں نہ ہی کسی ٹیوشن کی ضرورت ہوگی نہ کورسز کی, بس وہ کالج میں آ کر اپنی تعلیم حاصل کر پائیں گے. تو انہیں میرا نام آسیہ نقاشہ اور میں جی ڈی سی منڈی سے ہوں, اور آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ چیف ایجوکیشن منسٹر یہاں پہ آ رہی ہیں اور ہمارے جو کالج کے بارے میں وہ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گی. اور ہمارے جو جی ڈی سی منڈی کے اگر دیکھا جائے تو یہاں وہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں ہے جو ہر ایک کالج میں ہوتی ہیں, جیسے کہ اسپورٹس کی ہے اور کسی چیز کی ہے, اور وہ فیسلٹی ہمیں پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے. تو ہمیں ان کا بہت ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کالج کی بلڈنگ کے بارے میں آج کر کے جائیں گے کچھ نہ کچھ. اور اس کے بعد ہم تو 5th سیم ہیں, لیکن جو اسٹوڈنٹ جو آنے والے 1st سیم کے 3rd سیم کے, تو ان کے لیے اچھا رہے گا. تو اس کے بعد یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کافی اسٹوڈنٹ یہاں سے پونچھ جیسے کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں, انہیں کافی ساری چیزوں کا فیس کرنا پڑتا ہے, جیسے گاڑی کا کرایہ ہوتا ہے, اس کے بعد یا کچھ تو وہاں پہ رکتے ہیں, روم کا بھی کرایہ ہوتا ہے, کافی ساری. اور ہمیں اچھا ہوگا کہ یہاں اگر ہماری بلڈنگ اچھی بن جائے گی تو اسٹوڈنٹ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تھینک یو. رول آپ کا نام؟ میرا نام محمد شفیق ہے اور میں گورنمنٹ ڈگری کالج منڈی سے ہوں. یہاں پہ جو نئے کالج کا اناگوریشن ہو چکا ہے, ہم سکینہ کی میم کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ یہاں پہ آج آئیں گے اور اناگوریشن ہو چکا ہے. ہمیں دور دراز کے علاقوں کے ہم جو بچے ہیں, ہمیں پونچھ یا کسی اور کالج میں جانے میں بہت دقت ہوتی تھی. ہمیں یہ نزدیک کالج بنا ہے, ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور MLA اعجاز جان صاحب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ نئے کالج دیے. نیشنل کانفرنس جناب عمر عبداللہ صاحب, جناب محترمہ سکینہ ایتو صاحبان, محترمہ سکینہ ایتو صاحبان تمہارے ساتھ ہیں. آرام سے آپ پیچھے آ جائیں گے سر, تھوڑا ادھر سے ہی سر. Gentlemen, 5% get वाले MCC good. आपकी निरीक्षण के लिए हजरत. जी तो पहले हो जाओ. जी उस पर जाएगा. मैम आगे से मैम. सर बाकी साइड हो ना. वो नहीं तो नहीं गई. उधर साइड इक्वल फ्रॉम SKCGDC कौन? यार बच्चे तो उधर करो. बच्चे डिस्ट्रिक्ट नहीं. तो कुछ. करेक्ट सुधा पड़ो कंट्री कैडेट महफूजा कबीर GDC पहुंच. कैडेट मोहम्मद एजाज फ्रॉम SKC GDC पहुंच.
कैडेट इमरान जी GDC Poonch. Cadet Mohammad Umar from SKC GDC Poonch. श्रीमान गार्ड को सर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ. संतरी खड़ा रहे. बाकी गुड सर्जन. हाँ हो सर. सारे हो जाओ थोड़ा साइड. चलो सर ठीक है ठीक है. लाल है. आप सबको मुबारक. जल्दी बने कॉलेज बच्चे पढ़े. इससे बड़ी बात हुई है. चलो. Medical education, school education, higher education and social welfare. किस बारे तक में तक है आजाद साहब, शेख एजाज बशीर साहब, डिप्टी कमिश्नर पूंछ, अहमद खान साहब, पीर निसार हुसैन शाह साहब, बाबू हुसैन राठौर साहब, अब्दुल्ला भट्ट साहब, अनायत साहब, मोहम्मद अफसल साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, पीर निसार हुसैन फारूक खान साहब, सरपंच मोहम्मद असलम, डॉक्टर गुलाम अब्बास, सरपंच मुबशर पांडे, सरपंच बशीर. यही गुजरा, यहीं से हम लोग पैदल चल रहे हैं तो हमें खुशी के आंसू आ रहे हैं जो हम अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकते. मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि ख्वाब हकीकत बन चुका है जिसकी हमने कई बार ख्वाहिश की, कई बार हमने जदोजहद की. हमारी बहुत सारी बिल्डिंग का संगे बुनियाद आपके हाथों से होने जा रहा है. मंडी कॉलेज की बिल्डिंग अपनी इमारत और अपनी तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद है और हमारे नौनिहाल एक ऐसी जगह तालीम हासिल करेंगे जहां मुकम्मल फैकल्टी होगी, सहूलियत. हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है. थैंक यू वेरी मच सर. मैं प्रोफेसर, मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा. मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और मंडी तहसील की पूरी आवाम की तरफ से मोहतरमा सकीना इतू साहिबा को मुबारकबाद देता हूं कि जो मेहनत, जो कदम इन्होंने इस डिपार्टमेंट में आते ही संभाले हैं और जो मेहनत की उसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूं. और रिकॉर्ड छोटे से टाइम में इन्होंने वो काम किए जो आज मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 सालों से वो काम नहीं हुआ. यहां पे तरह तरह की बातें सुनने को मिली. अगर मैं बात आज करूं, क्योंकि ये बात मुझे कहनी बहुत जरूरी है, कि 2014 में जब हमने अपनी हुकूमत छोड़ी और 2014 के बाद जब हुकूमत के बनते ही जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर पुंछ के अंदर पुंछ की आवाम को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया. मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी क्योंकि मैं समझती हूं कि इस सब के लिए अगर कोई इंसान मुबारकबाद के हकदार है वो पहले आपके ऑनरेबल MLA साहब हैं, एजाज जान साहब, जिन्होंने इस चीज के लिए बेहद कोशिश की है कि ये कॉलेज किसी तरह बन सके. यहाँ के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको यहाँ तालीम मिल सके, वो उस तालीम के जरिए आगे जा सके. और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये एक इफ्तिदा जिस चीज की आज यहाँ पे हुई, ये फाउंडेशन स्टोन जो हमने यहाँ डाली,
और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूं जो R&B डिपार्टमेंट इस कॉलेज को बना रहा है बहुत जल्द कोशिश करेंगे इस कॉलेज को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इस कॉलेज ने भी एक बहुत बड़ा लंबा सफर देखा है। 14 से लेके आज तक 2025 तक का सफर जो है वो बहुत एक लंबा सफर होता है, और इतनी देर बाद आज ये फैसला हुआ है कि ये कॉलेज जो है कहां पे बनना है। और इसमें मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस कॉलेज के लिए आप सबको ये पैसा हासिल किया, यहाँ पे ये पैसा रिलीज किया ताकि कॉलेज जल्द से जल्द बन सके। आप सब जानते हैं कि आप सब लोगों ने जो परेशानियां मुश्किलें पिछले 10 वर्षों में देखी हैं, और अब जब ये एतमाद, ये भरोसा आपने इस सरकार को दिया, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, और ये कोई मान नहीं रहा था इलेक्शन से पहले कि कभी जान साहब जो है वो पुंछ के आप फिर से एमएलए बनेंगे, या उमर अब्दुल्ला साहब को इतनी मेजॉरिटी जो है वो मिल सकती है। लेकिन ये एक लोगों ने फैसला किया है, पहले अल्लाह ताला का फैसला है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला है। इतना एतमाद, इतना भरोसा इस सरकार को आपने दिया है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है जो भी हमने चीजें मैनिफेस्टो में रखी हैं, चाहे वो रियासती दर्जा वापस लाने की बात हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस की बात हो, चाहे वो आपका एकेडमिक सेशन चेंज करने की बात हो, वो हमने करके दिखाया, चाहे वो सोशल वेलफेयर में ओल्ड एज विडो पेंशन बढ़ाना वो हमने किया, इस सरकार ने किया इतने कम टाइम में। बहुत कुछ कहते हैं जिन्होंने आज हमें इस तबाही और बर्बादी तक लाया है, वो लोग आज बड़े बड़े दावे करते हैं। आज वो निकलते हैं कि हमें रियासत का दर्जा दो, लेकिन मैं कहती हूं कि जो दर्जा हमारे पास, जिस रियासत को आपने तोड़ फोड़ करवा के 2 हिस्सों में तकसीम किया है, उनकी बेटी की देन है। आज हमारे पास अगर स्पेशल स्टेटस नहीं है, उसको खत्म करने की अगर कोई पार्टी जिम्मेवार है, वो सिर्फ पीडीपी जिम्मेवार है। सुबह में एक कि वो क्या क्या बोल रहे थे कि 14 में ये कॉलेज कैसे लाया, फिर किस पीडीपी के वर्कर ने इसके लिए कुछ बोला, फिर उसके बाद लैंड का जो डिस्प्यूट हुआ है उसके बारे में, लेकिन उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया कि आज अगर यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब और जान साहब ने मिलके ये डिस्प्यूट हल किया है और ये जमीन यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है यहाँ के लोगों के फायदे के लिए, ताकि कॉलेज जो है वो जल्द से जल्द बन सके और लोगों को फायदा मिल सके। यहाँ सियासत बहुत होती है, चाहे वो पुल चुनाव वैली की अगर बात करेंगे, 10 वर्षों में मैंने कभी अपने मीडिया के भाई का कोई ट्वीट नहीं सुना है कि सरकार ने कहीं पे गलती की है। चाहते हैं 10 साल में बेचारे ये लोग बहुत डरते थे बात करने से, इनको पता था कि अगर हम कुछ बोलेंगे कल हम जेल में होंगे। लेकिन ये कश्मीरी में एक मिसाल है, जिसे पन्न से दस्तार वालों, पता नहीं आप कश्मीरी समझते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट 8 साल के बाद आज एटीडी पे काम कर रहा है और लिस्ट निकाल रहा है। हमारे सेक्रेटरी और हमारी डायरेक्टर बैठ के काम करते हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं, और अगर ये एटीडी पे ऑर्डर निकला है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काम किया है, ये उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने काम किया है। ये किसी कहने पे काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं जब हमें लगता है कि काम करना जरूरी है, और हमें मिली है। इन मीडिया के भाइयों को ये भी कहना चाहिए कि विरासत में पिछले 10 वर्षों में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई टीचर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है।
10 वर्षों में बैन लगी हुई है न्यू रिक्रूटमेंट पे। 10 वर्षों में हमारी टीचर की पोस्ट जो है उसको फ्रीज किया गया है। 10 वर्षों में कोई डॉक्टर नहीं लगाए गए हैं। आज उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जब बनी 500 नए डॉक्टर लगाए हैं, ताकि दूर दराज में होते हैं, कभी सेक्रेटेरिएट में होते हैं, कभी जम्मू में होते हैं, कभी किसी डायरेक्टर साहब के पास होते हैं, ताकि मेरे पुंछ के लोगों के लिए मैं काम कर सकूं। हमने हॉस्पिटल्स की सूरत मैं समझती हूँ काफी हद तक बदल। कैबिनेट मिनिस्टर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, हायर एजुकेशन, आज आप मंडी में पहुंचे हैं और एक हिस्टोरिकल कॉलेज जो मंडी में पिछले कई वर्षों से जो एक मुद्दा बना हुआ था, आज आपकी हुकूमत ने इसका फाउंडेशन स्टोन जो है आपके हाथों ले डाउन हुआ है। आप इस मौके पे क्या कहेंगे? मैं तो मुबारकबाद देना चाहती हूँ यहाँ के लोगों को। सबसे पहले जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जान साहब है यहाँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है और इन्होंने शुरू से ही, मुझे याद है 14 में भी इन्होंने बहुत शोर किया। उस टाइम ये एमएलए थे, मैं भी थी, मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, लेकिन ये यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने वॉकआउट भी किया था। लेकिन आज खैर देर आए दुरुस्त आए, ये इनकी डिमांड, इनका ये मिशन जो 2014 से लेके आज तक 25 तक, आज ये इनका मिशन पूरा हुआ। आज फाउंडेशन स्टोन डाली गई उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली सरकार ने, और हमारा मुकम्मल इरादा है इस सरकार का इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करने का, और हम अपनी तरफ से कर रहे हैं लोगों की खिदमत। और जो एजुकेशन सेक्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क, किसी रियासत, किसी यूटी को तरक्की करनी होगी, वहाँ के हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब की शुक्रगुजार हूँ, जब हमारी बजट असेंबली में पास हुई है, जब चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच दी, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बजट वो एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को दिया गया है। आज आप अगर देखेंगे कि हमने इस सरकार के दौरान इन 8 महीनों में सबसे पहले 510 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया, दूर दराज इलाकों में भेजा गया। कई असिस्टेंट प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट हुई है जिनको कॉलेजेस में भेजा गया है। प्रिंसिपल आपके कॉलेजेस में थे ही नहीं, लेकिन जब ये सरकार बनी है हमने प्रिंसिपल लगाए कॉलेजेस में। अभी भी कहीं कहीं कमी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए, बच्चे पढ़े, तरक्की करें, ताकि वो आगे बढ़े और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सके। इस 7-8 महीने के अरसा में रोड कम्युनिकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर को हुकूमत जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस जी इसमें खास करके पुंछ के अंदर काफी एक रोड्स का जो है वो नेटवर्क जो है वो खुल गया है, और उस पे पैसा भी आपकी गवर्नमेंट ने दिया है। ये किस हद तक आप इसको एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट देखते हैं? देखिए, ये तो रोड कनेक्टिविटी सबसे अहम चीज़ है। अगर आपके पास रोड कनेक्टिविटी होगी तो आप कॉलेज जा पाएंगे, आप स्कूल जा पाएंगे, आप खुदा न खास्ता हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने रोड कनेक्टिविटी में हर एरिया में, ये नहीं कि किसी को इग्नोर किया। अगर जम्मू की बात करें, वहाँ पे राजौरी की बात करें, यहाँ पे पुंछ की बात करें, पुंछ एमएलए ने भी मेहनत की है इस पे, इन्होंने भी अपनी जिम्मेवारी निभाई है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहिए हमें कि अगर हमने कोई डिमांड की है और उन्होंने उस डिमांड को पूरा किया है। सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट किसी को जाता है वो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है, और जान साहब को तो जाता ही जाता है, क्योंकि मेहनत करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, हर जगह जाते हैं, और तभी ये प्रोजेक्ट जो है उमर अब्दुल्ला साहब के पास पहुंचते हैं और उमर अब्दुल्ला साहब उनको पैसे रिलीज करते हैं। ये तकरीबन जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, आपने अपनी तकरीर में भी कहा कि इसी जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने सियासत का एक नक्शा दिया, जो एक मैं कहूँगा कि नॉट ए पॉजिटिव बट ए नेगेटिव, कि काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनने थे वो दूर हो गए, और आज स्टेट हुड के लिए भी डिमांड कर रहे हैं। और जैसे आपने फरमाया कि स्टेट हुड घुसने का भी एक उन्हीं पे उन्होंने खत्म करवाया, वही जिम्मेवार है। ये तो अयां है चीज। आप देखिए, अगर 2019 तक हमारे पास सब कुछ था, स्टेट हुड था, स्पेशल स्टेटस था, डेवलपमेंट थी, रोजगार था, हमारी अपनी जमीनें थी। आज क्या है हमारे पास? आज आपके पास स्टेट हुड नहीं है, आईएएस ऑफिसर को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं,
باقی ایشوز آپ کے پاس رکے ہوئے، لینڈ کا حق جو تھا وہ آپ کے پاس ہوا کرتا تھا، بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، آج آپ کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. اگر اس سارے چیز کی ذمہ وار کوئی پارٹی ہے وہ یہی پارٹی ہے جنہوں نے 2014 میں نکلے، نعرہ دیا کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، لوگوں کو گھر گھر 2 روزگار دیں گے. اور جب ایجنڈا آف الائنس انہوں نے بی جے پی کے ساتھ بنایا ہے، اور اس ایجنڈا آف الائنس میں انہوں نے یہی بنایا ہے 370 کو بھی ختم کرو، اسٹیٹ ہوڈ کو بھی ختم کرو، نوکریاں بھی کھا لو، یہاں کی زمین بھی کھا لو، یہاں کے لوگوں کا جینے کا حق بھی کھا لو، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے. آج ہم اسی حد تک پہنچے ہیں. لیکن ابھی ہوم منسٹر ہندوستان کے انہوں نے بھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سے اور چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب سے بڑے پازیٹیو وے میں، جس کو آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی کیبنٹ رینک کے منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ واقعہ اسٹیٹ ہوڈ کا جو درجہ ہے وہ جلد سے جلد دیا جائے. ہم یہی امید رکھتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آنریبل ہوم منسٹر صاحب ہیں انڈیا کے، انہوں نے پارلیمنٹ میں پہلے بھی کہا ہے کہ جموں کشمیر کو ریاستی درجہ واپس دیا جائے گا، لیکن ابھی تک آیا نہیں ریاستی درجہ. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد وہ فیصلہ کریں، اور جو ہمارا حق، اپنا حق ہے، ریاست جموں کشمیر ایک پرانی ریاست تھی جس کو توڑ پھوڑ کیا گیا، اور وہ ریاست واپس لائیں. جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ہے، اس حق کو واپس دیا جائے.